Hello friends, welcome back again on this beautiful platform that is Homeopathy Medicos, and in this video we are going to discuss about lead poisoning, which is very important topic of toxicology under the metal poisoning. Okay, before starting on this, I would like to inform you that this video is going to help both the category of the students, means those who are going to read it for the first time. Through this video they will able to become aware that what are the important points and what are the important topics under the lead poisoning that they have to be focused while reading their book. And second category, that is those students who just need a revision for the examination purpose. Now, before starting on the lead poisoning, we have to take a fact about lead poisoning, and the fact is that it is the most common type of the chronic poisoning. Okay, under the heavy metal group. Means what I mean to say that if there is a case of any chronic poisoning which is due to the metal, okay, then there is a high probability that that given metal would be or can be our lead. Okay, so this is the fact. Now, what are the sources of the compound that can induce the lead poisoning? These are the variety of compound, both include both organic and inorganic. But simple lead, elemental lead, doesn't create any kind of what poisoning. Okay, the poisoning is induced by other organic or inorganic. Okay, so the compounds are like lead carbonate, which is inorganic, and lead tetroxide, which is inorganic also. Okay, now what are the uses of the lead carbonate? It is extensively used in a paint or chemical. Lead tetroxide is used in a sindoor. Okay, now organic group belong to like lead tetraethyl, which is used as an anti-knock agent in automobile industry, and lead acetate, which is used as a sedative or painkiller medicine. Okay, in a painkiller medicine. So we see that poisoning can be induced both by the inorganic group as well as organic group, but organic lead poisoning is more dangerous than the inorganic. Okay, now comes to the topic of the absorption, deposition, and then excretion of the lead. Okay, so the absorption occur in a way like if the lead compound is ingested, it leads to the intestine. Okay, this is a cross section of the intestine, and now from the after taking the intake of the lead, it is reached to the intestine for the absorption purpose. And also deposition, and which follow the order of bone, liver, and then kidney. In the bone, about 70% of the absorbed lead get deposited. Okay, so it is a reservoir site for the lead. Okay, that is a bone. Okay, so the movement of lead either from the intestine to the blood or from the site of deposition to the blood can be concluded from this result. Okay, that is lead in the blood is inversely proportional to the amount of calcium, amount of iron, and viscosity of the blood. Okay, so if these factors in the blood are less, then the amount of the iron movement either from intestine to the blood or from the deposition site to the blood get increased up. And if they are less or if they are high, then their movement is preventable. Okay, so this is the way through which we can understand the absorption of the lead. So the practical point of importance, it is like in the case of the hypocalcemic condition or anemia condition, in which the iron content and calcium content in our blood is low. So in that case, if the patient has received the lead poisoning, then the amount of the severity is very high, because its absorption from the GI tract to the blood get increased up. Okay, so it can be very fatal. Okay, in that condition. So this is the way through which absorption and deposition of the lead occur. Now, if we talk about excretion, about 70% of lead is excreted in the urine. Okay, then we have our bile. Okay, bile secretion, then we have fecal secretion, and then also we are through the skin. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यूरिन के थ्रू, उसके बाद हमारे पास बाइल, ओके, फिर उसके बाद हमारे
जो स्किन से जो डिस्चार्ज होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, उनके माध्यम से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन, डिपोजिशन एंड एक्सक्रीशन एंड द trick regarding to the blood movement either from GIT to blood or from the deposition side to the our blood. Okay, so next move to the another so next move to the another important topic, that is lead poisoning. Is categorized as a acute or chronic. If we talk about acute lead poisoning, the fatal dose regarding to those compound through which the lead poisoning is more common, and these are like lead acetate, which is used as a painkiller, है ना, which I earlier told you. The fatal dose about lead acetate is 40 gram, and for the lead carbonate, that is which is active ingredient of the paint, है ना, it's about 20 gram, and its fatal period is about 1 से 5 दिन तक रहता है उसका। और उसका जो इफेक्ट होता है एक्यूट लेड पॉइजनिंग का, वो मेनली हमारे जीआईटी और सीएनएस में देखा जाता है, ठीक है। जीआईटी सिम्टम्स आर लाइक मेटालिक टेस्ट, है ना, मेटालिक टेस्ट हमको फील होता है, बर्निंग हमें महसूस होती है, ठीक है, थ्रोट में, और उसी से हमें प्यास भी लगती है, नोजेटिक ब्रेथ होती है, वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड और डायरिया, है ना। जब वॉमिटिंग और डायरिया हमारा इतना प्रोमिनेंट होता है कि जिससे हमारा जो है वाइटल फ्लूइड का लॉस होने लगता है, और यदि वाइटल फ्लूइड का जब हमारा लॉस होगा तो हमारी जो कोलैप्सिंग या फिर बीपी जो है वो हमारा कम हो जाएगा, जिसके चलते हमारी डेथ भी हो सकती है अगर पर्सन इज नॉट गिवन मेडिकल केयर। इन द सेम वे फॉर द सीएनएस वी हैव वेरियस कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ द manifestation like insomnia, headache, and myalgia, athalgia, and dizziness, delirium, dizziness, and ultimately lead to the coma and further death if medical care is not provided. Okay, so how to tackle the case of acute lead poisoning? We have a component like gastric lavage, in which we use 1% of sodium or potassium sulfate. Okay, gaस्ट्रिक लैवेज का क्या हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा स्टमक की जो वॉशिंग कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ओके, लेड के अमाउंट को जो कि हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमारा डिमल्सेंट यूज़ करते हैं, विच इज़ जो कि हमारे जो कि ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारे फैटी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, लाइक मिल्क, है ना, ग्रीस और बटर, ओके, जिसमें कि जो कि हमें आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं बाय फॉर्मिंग द बैरिकेड, ओके, बिटवीन एब्जॉर्प्शन साइट और लेड के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारे परगेटिव हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कैस्टर ऑयल, ठीक है, उनका भी मैकेनिज्म जो है वो हमारा सेम होता है एज ए डिमर्सेंट, वो उसके एब्जॉर्प्शन लेड के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा क्या है, तो देखिए ये तीन जो है, ठीक है, ये तीन हमारे किस तरह वर्क करेंगे जीआईटी के लिए, इनका टारगेट क्या होगा, वो जीआईटी पे इनका टारगेट होगा, वो हमारे लेड के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेंगे। अब जब हमारा मान लीजिए कि हमारा लेड जो है वो ब्लड में आ चुका है, ठीक है, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। अब हमारा मोटिव है कि जो हमारा जो लेड का जो कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उसका इनसॉल्युबल फॉर्म बना दें, ताकि वो है हमारा अनरिएक्टिव हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, जैसे EDTA या फिर कैल्शियम क्लोराइड, जो कि हमारे ब्लड में आयरन के जो पॉइजनिंग कंपाउंड है उनसे रिएक्ट करके वो फर्दर उनको न्यूट्रलाइज और इनसॉल्युबल फॉर्म में बना देगा, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा एक्यूट लेड पॉइजनिंग का केस हो गया, जिसमें हमारे जीआईटी और सीएनएस के मेजर प्रोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलता है, और उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो दूसरा जो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगेन जो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पॉइजनिंग इज क्रॉनिक lead poisoning. Okay, so these are the some important manifestation of the chronic lead poisoning which is worth to discuss, and these are first of all the facial pallor, ठीक है, facial pallor sign, it is a earliest sign, ठीक है। जो हमारा chronic lead poisoning होगा उसका जो पहला जो हमें देखने को मैनिफेस्टेशन मिलेगा वो हमारा facial pallor sign होगा। उसमें क्या होता है कि जो हमारा माउथ है, ठीक है, माउथ के अराउंड, ओके, अगर ये हमारा फेस है, ओके, ये हमारा माउथ है, तो माउथ के अराउंड, ठीक है, क्या होगा कि वैसोस्पैज्म ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द माउथ, जिसके चलते सर्कुलेशन वहाँ के हिस्से में जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और जब हमारा रेडनेस यानी कि जब हमारा सर्कुलेशन स्टॉप हो चुका है तो हमें उस जगह पे एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि वाइटनेस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा अर्लीस्ट साइन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, यू विल हैव टू से फेशियल पैलर, ठीक है। दूसरा क्या है, बुटॉन लाइन। बुटॉन लाइन में क्या होता है कि जो हमारा जैसे ये बकल कैविटी है, तो ये हमारा टूथ है, ठीक है, ये टीथ है और ये हमारा गम है, ठीक है।
तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइन बिटवीन गम एंड टीथ, ठीक है। तो इनका सोर्स क्या होता है, बुटोलाइन हमारा कैसे बनती है, लेट अस थिंक। क्या है कि हमारा जो जो गम की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हमारा लेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हमारे जो बकल कैविटी में है ना, हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होगा। तो ये दोनों जब हमें रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे जो है बुटोन लाइन का क्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो यही बुटोन लाइन हमें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, ठीक है, हमारे क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड। और तीसरा जो है हमारा देखने को मिलता है एनीमिया, जो कि हमारा जो अर्लीस्ट जो है अर्लीस्ट स्टेज में, अर्लीस्ट क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के स्टेज में हमें पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। मगर एज द लेड पॉइजनिंग कीप ऑन परसिस्टिंग है ना, इन द लास्ट फेज और टर्मिनल स्टेज ऑफ लेड क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग देयर इज ए कंप्लीट ट्रू अनीमिया, ठीक है। तो ये ट्रू अनीमिया जो है इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसको भी देखना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले जो है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन पॉरफायरिन डेरिवेटिव। हमें पता है कि जो आरबीसी में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा पॉरफायरिन हेड और दूसरा हमारा फैटॉल्टे। तो पॉरफायरिन हेड जो होता है उसका उसका जो है लेड पे जब उसका एक्शन पड़ता है, ठीक है, पॉरफायरिन का, तो वो जो है पॉरफायरिन के कई प्रकार के डेरिवेटिव्स बना लेता है। एंड दीज आर लाइक कोप्रोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन एंड एमिनोलिबिनिक एसिड, ठीक है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉरफायरिन डेरिवेटिव विच आर कॉमनली सीन इन द क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, ठीक है। और जो दूसरा जो हमारा एनीमिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है वो रिंग साइड्रोब्लास्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए रिंग साइड्रोब्लास्ट फिनोमेना जो है वो हमको इरेथ्रोब्लास्टिक स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टिक स्टेज में देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे नॉर्मल इरेथ्रोब्लास्ट है, ठीक है, ड्यू टू द क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग इसमें क्या हुआ कि जो आयरन का एक्युमुलेशन होने लगा अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ इरेथ्रोब्लास्ट, क्योंकि इरेथ्रोब्लास्टिक स्टेज में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों ओर जब हमारा आयरन की जब गैदरिंग होने लगती है ना, एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो हम इसको बोलते हैं रिंग साइड्रोब्लास्ट फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एनीमिक मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलता है वो ये है कि बैसोफिलिक पंक्टेट या फिर बैसोफिलिक स्टिपलिंग, ठीक। तो इसमें हमारा होता क्या है कि आरबीसी में जो हमारे राइबोसोम्स और डीएनए और सॉरी राइबोसोम्स और एमआरएनए के एक्यूमुलेशन से जो है हमारा इंस्टेड ऑफ गिविंग डार्क और रेडिश पिंक स्टेनिंग है ना, दे स्टार्ट इम्पार्टिंग डार्क ब्लू कलर, ठीक है, डार्क पर्पल कलर है ना, पैसोफिलिक स्टेनिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है, डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू स्टेनिंग है ना, इंस्टेड ऑफ हमें रेडिश पिंक विच इज नॉर्मली सीन इन द पैसोफिलिक स्टेनिंग, ठीक है। तीसरा जो हमारा जो फोर्थ हमारा सिम्टम है वो हमारा कॉलिक है, ठीक है। तो कॉलिक जो है वो हमारा लेट साइन है और इसमें एज यूजुअली वी नो दैट इट इज अ पेन इन द एब्डोमेन। सीएनएस का जो मैनिफेस्टेशन है वो मेनली हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, और वो क्यों देखने को मिलता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के इनएक्टिवेशन से, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है उसके इनएक्टिवेशन से हमको देखने को मिलता है। और ये इनएक्टिवेशन कैसे होता है, देखिए लेड कंपाउंड है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग चलते हुआ क्या इसमें कि जो सीएनएस में जो हमारे ऐसे एंजाइम्स, ठीक है, जिनमें थायरोइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है वो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसकी इनएक्टिवेशन से हमें जो चेंज इन बिहेवियर देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में। और वो बिहेवियर कैसे हमें देखने को मिलेगा, जैसे उनमें रेस्टलेसनेस होने लगेगी, हमारा हाइपर एक्टिवनेस होने लगेगा, एग्रेसिवनेस, डलनेस एक्सेट्रा, ठीक है। और साथ ही साथ उनमें डेलिरियम, पैराथेसिया, इंसोम्निया एंड डिजीनेस वगैरह सब तो हमारा होता ही होते हैं, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट हमारा मैनिफेस्टेशन है वो लेड पैल्सी, ठीक है, जो कि अगेन ये हमारा लेट साइन होता है। इसमें क्या होता है, ब्रिस्ट ड्रॉप और हमारा फुट ड्रॉप जो आपको पता है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज फेशियल पैलेट जो है वो हमारा अर्लियर साइन है, और दूसरा जो कोलिक और हमारा लेड पैल्सी, दिस आर द लेट साइन ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, ठीक है। और क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को मैनेज कैसे करते हैं, बाय रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स, ये तो हमारी पैर कंडीशन होगी, ठीक है। और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बिकॉज जो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग का उसका जो स्फीयर ऑफ अफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हम इसको जो है रिकवर करते हैं पेशेंट को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेड पॉइजनिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज आस्क मी कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।